العلم نور العلم نور العلم نور۔ علم ایک نور ہے جسے اللہ عز و جل بندے کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ العلم نور العلم نور العلم نور العلم نور۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 10 کے آڈیشن کے لیے انتخاب کے لیے ہم پہنچے ہیں سردار آباد فیصل آباد۔ آج یہاں پر انشاءاللہ کثیر تعداد میں اسلامی بھائیوں کی آمد متوقع ہے۔ پہلے ان کا تحریری امتحان ہوگا اور اس کے بعد ہم سلیکٹ کریں گے اسلامی بھائی اگلے راؤنڈ کے لیے۔ دیکھنا یہ ہے کس کس شعبے سے تعلق رکھنے والے عاشقان رسول آج ہمارے سلسلے میں امتحان دیتے ہیں، اور اس کے بعد دیکھنا یہ ہے کہ کتنے ایسے ہیں جو نیکسٹ راؤنڈ کے لیے سلیکٹ ہوتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا مقبول عام سلسلہ ذہنی آزمائش اور اس کا ہے سیزن 10۔ ہم اس وقت موجود ہیں فیصل آباد سردار آباد میں۔ العلم نور العلم نور العلم نور العلم نور العلم نور۔ سنو عبادتوں میں سب سے اعلیٰ علم دین ہے۔ محمد مون احمد، ماشاءاللہ آپ بی کام آئی ٹی میں آپ کر رہے ہیں، کیسے آپ کا ذہنی آزمائش کی طرف آنے کا ذہن بنا؟ من چینل پر آپ کو دیکھا کرتے تھے، ہمیں بھی ہوتا تھا کہ ہم بھی جائیں ذہنی آزمائش پہ۔ پھر میں نے پچھلے سال ارادہ بنایا تھا کہ میں سیزن 10 میں آڈیشن دوں گا۔ چلو دیکھتے ہیں اللہ پاک کام جب بھی دیتا ہے کیا نہیں دیتا ہے، اس لیے پھر میں آج آیا۔ ٹھیک، نماز کی شرائط کتنی ہیں؟ نماز کی 6 شرائط ہیں۔ فرائض کتنے ہیں؟ نماز کے فرائض 7 فرائض ہیں۔ کون سی شرط ہے جو کہ نماز کا فرض بھی ہے؟ تکبیر تحریمہ۔ کچھ شاعری سے دلچسپی ہے آپ کو؟ جی تھوڑی ہے۔ کچھ تقریریں وغیرہ بھی کرتے ہیں لگتا ہے آپ؟ نہیں۔ اچھا چلیں اگلے اسلامی بھائی، اسد علی اتاری، ماشاءاللہ آپ بی ایس سی کیمیکلز میں کر چکے ہیں یا کر رہے ہیں؟ کر رہا ہوں۔ 3rd ایئر ہیں انجینئرنگ میں؟ جی۔ اچھا، اس کے علاوہ کیا کرتے ہیں؟ بس یہی۔ اچھا، کچھ گھبرائے ہوئے لگ رہے ہیں، کچھ افسردہ لگ رہے ہیں، کچھ تھکے ہوئے لگ رہے ہیں، خیریت تو ہے؟ ٹھیک ہے، تیار ہیں آپ؟ اچھا، ابھی پڑھائی کر رہے ہیں صرف؟ کہاں فیصل آباد میں ہی ہوتے ہیں؟ فیصل آباد۔ طہارت کس کو کہتے ہیں؟ جو نماز کی شرط طہارت ہے، تھوڑی سی اس کی تفصیل بتا دیں۔ نمازی کے بدن کا پاک ہونا، اس کے لباس کا پاک ہونا، اور جس جگہ پر نماز پڑھنی ہے اس جگہ کا پاک ہونا۔ اسد بھائی کہ پچھلے دنوں امیر اہل سنت نے ایک ڈرائیو شروع کی، ایک مہم شروع کی، جس کے تحت ہم نے آب و ہوا کو، ماحول کو سرسبز و شاداب کرنے کی نیت کی۔ کیا اس مہم کا کیا نام تھا؟ شجر کاری۔ اشعار سنائیں گے حضرت؟ کون سا کلام پسند ہے آپ کو؟ پوچھ لیں اگر آتا ہوا سنا۔ کیا بات ہے۔ اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و تواں تمہارے لیے۔ یہ تاب و تواں تمہارے لیے۔ یہ اگلے بھائی کو مائک دیجیے گا۔ ہاں، محمد سائل رضا اتاری، ولد ماجد احمد، کیا کرتے ہیں بیٹا؟ جامعۃ المدینہ۔ کون سے درجے میں؟ درجہ ثانیہ۔ دوسرے درجے میں۔ اچھا، ہم نے کون سا عرس منایا اس بار؟ 100 سال۔ اس بار کون سا اسلامی سال ہے؟ 1440۔ تو پھر وصال کا سال کون سا ہوگا؟ 1340۔ ٹھیک ہے نا، تو 1340 آپ کا سال وصال یاد ہونا چاہیے ہمیں۔ اگلے بھائی کو مائک دیجیے گا بیٹا۔ عدنان علی اتاری ولد محمد سلیم، جی بیٹا آپ جامعۃ المدینہ کون سے درجے میں؟ خامسہ میں۔ خامسہ میں ہیں۔ پہلے کبھی ذہنی آزمائش کے آڈیشن میں حصہ لیا آپ نے؟ نہیں لیا۔ جی فہیم بھائی سوال کر۔ باوضو سونے کی کیا فضیلت ہے؟ باوضو سونے والا حدیث پاک میں ہے کہ باوضو سونے والا روزہ رکھ کر عبادت کرنے والے کی طرح ہے۔ جی جواب درست ہے۔ وضو کے کتنے مستحبات امیر اہل سنت نے اپنی کتاب وضو کا طریقہ میں تحریر فرمائے؟ 29۔ کون سا کلام پسند ہے آپ کو؟ امیر اہل سنت کلام؟ جی
امیر علیہ السلام کا کلام، اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر، پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی جائے۔ ٹھیک ہے، تشریف رکھیں گے اسلام بھائی۔ تو کیسے ذہنی آزمائش کی طرف آنے کا ذہن بنا آپ کا؟ یہ پیارے بھائی نے دعوت دی تو اس دعوت کو میں نے قبول کیا، پھر ذہن بنا کے۔ اسلامی تاریخ کی وہ کون سی جنگ ہے، وہ کون سا غزوہ ہے جس میں فرشتوں کی فوج کے ذریعے مسلمانوں کی مدد کی گئی؟ غزوہ بدر میں۔ غزوہ بدر کس تاریخ کو ہوا تھا؟ صرف ڈیٹ بتا دیں، تاریخ اور مہینہ بتا دیں۔ رمضان المبارک میں ہوا تھا۔ تاریخ کیا تھی؟ یہ بتائیے سترہ کسے کہتے ہیں؟ سترہ سترہ جو نمازی اپنے آگے چیز رکھتا ہے، کتنی اس کی مقدار ہونی چاہیے؟ تقریباً 2 فٹ۔ اچھا، سترے کی مقدار کم از کم 1 ہاتھ ہو، اور یعنی آدھا گز اونچا ہو، اور انگلی کے برابر موٹا ہونا چاہیے۔ 2 گز تو بہت بڑا ہو جاتا ہے، 2 گز کا تو بعض اوقات انسان بھی نہیں ہوتا۔ محمد عمران ول سلطان احمد، آپ جامعۃ المدینہ میں کون سی درجے میں پڑھ رہے ہیں بیٹا؟ درجہ خامسہ۔ درجہ خامسہ میں پڑھتے ہیں آپ، اچھا۔ اور کہاں پر پڑھتے ہیں؟ فیضان مدینہ میں؟ اچھا ٹھیک ہے۔ آج کس چیز کا پیپر تھا آپ کا؟ تفسیر کا تھا۔ تفسیر قرآن کا پیپر تھا، اچھا۔ تفسیر جلالین کا تھا۔ امام اعظم کا نام بتائیے۔ امام اعظم کا نام ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ۔ ان کا نام کیا تھا؟ یہ بتائیے کہ کون سا کلام پسند ہے آپ کو؟ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے کا والے۔ مقطع سنائیں۔ رضا نفس ہے دشمن ہے دم میں نہ آنا، کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے۔ چندرانے والے کا کیا مطلب ہے؟ اگلے بھائی کو مائک دیں۔ محمد عثمان رضا ولد محمد بوٹا، دھونے کی کیا تعریف ہے؟ جب شریعت میں فقہ میں دھونے کی بات ہوگی تو اس سے کیا مراد ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کسی عضو کو دھونے کا مطلب اور معنی یہ ہے کہ اس عضو پر پانی کے کم از کم 2 قطرے بہہ جائیں۔ اور اس عضو پر یا اس کے ہر حصے پر؟ عضو کے ہر حصے پر، حتیٰ کہ کوئی بال بھی سوکھنے نہ پائے، اس پر بھی پانی کے 2 قطرے بہہ جائیں۔ تیل کی طرح پانی چپڑ لینے کو یہ دھونا نہیں کہیں گے۔ اشعار بیٹا کون سے آپ کو کلام پسند ہے؟ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے، فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان، تیرے نام پہ جاں فدا، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں تو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہان، اس کا کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نہ۔ یہ نہ پارائے نہ کیوں کہا اعلیٰ حضرت نے یہاں پر؟ پارائے نہ روٹی کا ٹکڑا، جی، کہ میرا دین کوئی اس طرح کا نہیں ہے کہ در در پہ جس کے در پہ جائیں وہی اپنے رنگ میں دین کو ڈھنگ لے۔ محمد احسان ولد محمد افضل، جناب آپ جامعۃ المدینہ میں کون سے درجے میں؟ درجہ ثالثہ، 3 درجے میں، ماشاءاللہ۔ آج آپ کا کس چیز کا پیپر تھا؟ اصول فقہ، اصول شرح۔ جی فہیم بھائی سوال کیجئے۔ امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ نے 1 دن کے بچے کے دودھ کی الٹی اور پیشاب کے حکم کے بارے میں کیا حکم تحریر فرمایا؟ فرمایا یہ ویسے ہی ناپاک ہے جس طرح بڑے آدمی کا جو ہے پیشاب اور خون وغیرہ ناپاک ہے، اسی طرح اس کا بھی خون ناپاک اور پیشاب ناپاک ہے۔ صحیح، ٹھیک۔ اعلیٰ حضرت کے کلام کے کسی بھی کلام کے 3 مقطع سنا دیجئے۔ غمزدوں کو رضا مزدہ دیجیے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، کہاں تو نے دیکھے ہیں چندرانے والے، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا ہے نہ نہیں۔ ماشاءاللہ، تشریف رکھیں۔ درجہ ثابیہ جامعۃ المدینہ میں پڑھتے ہیں، یہاں فیضان مدینہ میں، ماشاءاللہ۔ آج کس چیز کا پیپر تھا آپ کا؟ اصول حدیث۔ اصول حدیث، نخبۃ الفکر۔ اچھا، یہ بتائیے کہ وہ کون سے صحابی ہیں جن کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا؟ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ٹھیک ہے جی، سوال کیجیے۔ مائع مستعمل کسے کہتے ہیں؟ مائع مستعمل کسے کہتے ہیں؟ مائع مستعمل ایسا پانی کہ جس میں بغیر دھلا ہاتھ بھر جائے وہ وضو کے اور غسل کے استعمال کے لیے نہیں رہتا۔ کوئی اور بھی اس کی تفصیل ہے؟ یہ یہی ہے؟
अगर वो बगैर वज़ू के उसमें हाथ पकड़ा तो वो डाला है तो वो पानी वज़ू के लिए भी इस्तेमाल नहीं हो सकता और गुस्ल के लिए भी इस्तेमाल नहीं हो सकता। अगर उस पर गुस्ल फ़र्ज़ था, उसने अपना हाथ डाल दिया या उंगली का हिस्सा डाल दिया तो उससे पानी बगैर किसी भी चीज़ के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। दरदा किसे कहते हैं? किसी जगह पर भी पानी में हाथ डाल दे तो नहीं, वो दह दरदा पानी की उसमें कैद लगाई गई। अगर दह दरदा होगा तो उसमें अगर लगा देगा तो उसमें वो हुक्म जारी नहीं होगा, वो वज़ू के लिए इस्तेमाल हो सकता है, गुस्ल के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। इससे कम होगा तो इससे कम होगा उसमें हुक्म होगा ये वज़ू गुस्ल के इस्तेमाल करने नहीं। नस का इंजेक्शन लगाने से वज़ू टूटेगा या नहीं टूटेगा? तेरे आगे यूं हैं दबे लचे, तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़ुबान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। अगले भाई को माइक दें। अजीम अनवर वल्द मोहम्मद अनवर जी। माशाल्लाह, आप दर्जा कौन सा है आपका? दर्जा सानिया। दर्जा सानिया। जामिअतुल मदीना में ही है? जी यहीं पे हैं। अच्छा, यहीं पर होते हैं, माशाल्लाह। ये बताइए सैयदी गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मज़ार कहाँ है? जिलान में। जिलान में। अच्छा, पैदाइश जिलान में हुई थी, मज़ार तो बगदाद में है। अच्छा, ये बताएंगे कि यकुम शव्वाल को हम सब क्या मनाते हैं? यकुम शव्वाल को मिलकर खाना खाने की फजीलत पर कोई हदीस पाक सुनाएंगे? मिलकर खाना खाने से बरकत बनती है खाने में। अगले भाई को माइक दें। मोहम्मद इरफान वल्द मोहम्मद रमज़ान। बेटा आप ये बताइए कि कै किसी को आ जाए तो उसके रोज़े और वज़ू का क्या हुक्म होगा? अगर किसी को कै आ जाए, अगर तो वो मुंह बल कहे, यानी ऐसी कै आई के बाद तकल्लुफ़ नहीं रोक सकता तो उसका रोज़ा टूट जाएगा। अगर कै ऐसी है कि बाद तकल्लुफ़ नहीं आई, यानी ऐसी क्या आई कि मुंह बल के नहीं है तो रोज़ा उससे नहीं टूटेगा। मेरा बेटा दोनों भाई गौर से सुन लें, बाल्टी भर के आ जाए ना फिर भी रोज़ा नहीं टूटेगा। कै अपने हाथ से करेगा, खुद कै करेगा तब रोज़ा टूटेगा। रोज़ा टूटने के लिए कै से रोज़ा नहीं टूटता। अब आप बता दें, चला अब यकुम शव्वाल को हम सब क्या मनाते हैं? ईद उल फितर। ईद उल फितर मनाते हैं, आप भी मनाते होंगे ना, ठीक है ना। अच्छा ये बताइए कि हम शब बारात किस तारीख को मनाते हैं? 15 शुबानुल मुअज़्ज़म। अच्छा, शब महराज कौन सी तारीख को होती है? 21 महराज। अच्छा, शब महराज फैसलाबाद में अलग तारीख बनाई जाती है। अच्छा, प्यारे आका महराज की शब गए थे और सारे अंबिया की इमामत की थी, वो कहाँ की थी? वो जो उनसे पहला काबा था हमारा, हाँ। उसमें बैतुल मक़दस भी। आला हजरत का एक शेर है उस नमाज के बारे में, वो सुनाएंगे? चलें अगले भाई को माइक दें। शहरियार शफीक, वो कौन है? आप हैं माशाल्लाह जी। शहरियार भाई आप क्या करते हैं? दरस निज़ामी कौन से दर्जे में? खामसा में हैं। आप पठान हैं जी? पठान हैं आप? अच्छा, लुक लाइक पठान। दावत इस्लामी के मदनी माहौल में भी एक बड़ी प्यारी तफसीर शाया हुई है, उसका नाम बताइए। तफसीर सिरातुल जिनान। सिरातुल जिनान कितनी जिल्दों पर है? 3 जिल्दों पर है। अच्छा, अभी तक लगता है 3 ही पहुंची हैं आप तक। 30। ओए होए, मुफ्ती साहब ने 10 लिखी हैं, आपके पास 30 आ गई हैं। किन्होंने लिखी है? मुफ्ती कासिम साहब। मुफ्ती कासिम तो हैं ही सरदाराबाद के। यार ऐसा करते हो भाई। चले जनाब सवाल करें। दावत इस्लामी के मदनी माहौल में हर सैटरडे को, हफ्ते को शाम को हमें एक मदनी काम करने का हुक्म दिया गया है। वो कौन सा काम है? मदनी मुज़ाकरा। मरीज़ की दुआ की कबूलियत के बारे में क्या रवायत है? प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि 3 लोगों की दुआ रद्द नहीं की जाती, उसमें से एक मरीज़ भी है। सबका बहुत शुक्रिया, तशरीफ़ रखेंगे। अगले 4 इस्लाम बजाएंगे इंशाल्लाह। ज़ुल्करनैन भाई जामिअतुल मदीना कौन से दर्जे में? खामिसा। 5वें दर्जे में, माशाल्लाह जी। फ़हीम भाई सवाल कीजिए। दुखती आँख से जो आंसू निकले उसका क्या हुक्म? दुखती आँख से जो आंसू निकलता है उसका क्या हुक्म? दुखती आँख से जो पानी निकले वो नापाक है, उससे वज़ू टूट जाता है। अगर कपड़े या आस्तीन से उसको साफ़ करे तो कपड़े भी नापाक हो जाएंगे। किसी को कै हुई तो कै पाक है नापाक है? अगर मुंह भर हो तो वो नापाक होगी। अच्छा, मुंह भर नहीं है तो नापाक नहीं है। पता नहीं ये मुंह भर वाला फार्मूला लगता है यहाँ कुछ ज़्यादा मशहूर है। पेट से अगर कोई कै आएगी तो वो नापाक होगी, मादे से अगर आएगी ना तो वो नापाक होगी। मुंह भर की उसमें कैद नहीं है। अगले भाई को दे माइक। मोहम्मद कासिम अत्तारी आप हैं? माशाल्लाह। कासिम भाई कौन से दर्जे में हैं?
درجہ ثانیہ 6 سالہ مرکزی جامعۃ المدینہ فیصلہ سردار آباد فیصلہ آباد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آج پیپر بھی دے دیا آپ نے؟ جی ماشاءاللہ. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے والد گرامی کا نام بتائیں. مولانا نقی علی خان. ان کے والد کا نام بتائیں. اعلیٰ حضرت کے پیر و مرشد کا نام بتائیں. سید شاہ علیہ رسول. ان کا مزار کہاں ہے؟ خالہ اعلیٰ حضرت کا جو خان وادہ کہلاتا ہے، جیسے اعلیٰ حضرت اور ان کے خاندان کا بریلی سے تعلق ہے، ان کے خان وادے کا تعلق کہاں سے؟ افغانستان کے شہر. ابراہیم انجم بھائی ماشاءاللہ. آپ کون سے درجے کے طالب علم ہیں؟ درجہ اولا. درجہ اولا کے. آئی کام سے کیا مراد ہے؟ آپ نے آئی کام اپنی تعلیم لکھی ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ کیا کیا آئی کام میں آپ نے؟ اکاؤنٹنگ وغیرہ پڑھی ہے. اکاؤنٹس وغیرہ پڑھا ہے آپ نے. جناب کر لیا آئی کام؟ کیا کر رہے ہیں؟ کر لیا. جناب سوال کریں. کتا کپڑوں سے ٹچ ہو جائے تو کپڑوں کا کیا حکم؟ اگر اس پہ نجاست لگی ہے تو ناپاک ہو جائے گا کپڑے، اور اگر لواب لگا تو بھی ناپاک ہو جائے گا کپڑے. کتے کا جسم تر ہے، گیلا ہے، اور وہ کپڑے سے ٹچ ہو گیا، پھر کیا ہوگا؟ اچھا. نماز میں ہنسا کوئی شخص، اب کیا ہوگا نماز کا؟ جی نماز میں ہنسی آ گئی، اب کیا ہوگا؟ وضو ٹوٹ جائے گا اور نماز باقی رہے. نماز بھی ٹوٹ جائے گی. اچھا. تو کوئی اس کی مقدار ہے کتنا ہنسنے پر، صرف مسکرانے پر وضو ٹوٹ جائے گا، یا ہنسنے کی کوئی آواز کی مقدار ہے؟ کہہ لگانے سے تک. ٹھیک ہے. محمد احمد ول سہیل ظفر، آپ کیا کرتے ہیں بیٹا جامعۃ المدینہ؟ کون سے درجے میں؟ ثالثہ. تیسرے درجے میں کہ دوسرے میں؟ تیسرے میں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 63 سال. مکے میں کتنے سال گزارے؟ 53 سال. مدینہ شریف میں 10 سال. اچھا. کس سال کی عمر میں پہلی وحی نازل ہوئی؟ 40 سال. پیارے آقا نے جو مدینے کی طرف ہجرت کی، اس وقت پیارے آقا کی عمر کتنی تھی؟ 53 سال. 53 سال. مدینے میں پہنچے، جو سفر ہوا مکے سے مدینے، اس سفر کو کیا کہتے ہیں؟ ہجرت. ہجرت طیبہ. ہجرت مدینہ ہو گئی. ٹھیک ہے. مدینہ شریف پہنچے، پہلا کام کیا کیا پیارے آقا نے؟ کہاں قیام کیا؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ. ماشاءاللہ. وہاں کچھ بنایا میرے آقا نے؟ وہاں جشن میلاد بنایا. نہیں، جشن میلاد نہیں منایا، وہاں نبی پاک نے مسجد کی تعمیر کی. کون سی مسجد تھی؟ مسجد قباء. ماشاءاللہ. آپ تشریف رکھیں. محمد عثمان ولد علی رضا، آپ کی عمر 18 سال ہے، اور آپ کرتے کیا ہیں بیٹا؟ درس نظامی پڑھتا ہوں. درس نظامی. کون سے درجے میں؟ سال 2. کون سے جامعہ میں؟ جامعہ نعیمیہ. جامعہ نعیمیہ میں. وہ 10 صحابہ جنہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی بشارت دی، انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ عشرہ مبشرہ. اچھا. عشرہ مبشرہ. حضرت سعد بن ابی وقاص کیا ان میں شامل ہیں؟ جی. اچھا. حضرت ابو عبیدہ بن جرہ اس میں شامل ہیں؟ جی. حضرت حمزہ اس میں شامل ہیں؟ جی. حضرت حمزہ ان میں شامل نہیں ہیں. حضرت حمزہ نبی پاک کے کیا تھے؟ چچا. وہ کون سے صحابی ہیں جنہیں غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے؟ غسیل الملائکہ، جن کو فرشتوں نے غسل دیا نا. غسیل الملائکہ مطلب تو آپ سمجھ رہے ہوں گے، ٹھیک ہے نا. اچھا. یہ بتائیے بیٹا کہ اشعار کون سے پسند ہیں آپ کو؟ سب سے اعلیٰ ہمارا نبی. واہ بھائی واہ. سب کو ماشاءاللہ یہی کلام زیادہ پسند ہے. اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی. پورا پڑھیں. اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی. ٹھیک ہے. سفر کی ابتدا کس دن کرنی چاہیے؟ سفر کی ابتدا مسجد میں جا کے 2 نفل پڑھنے چاہیے. کوئی دن پوچھا ہے آپ سے کس دن کرنی چاہیے؟ اچھا. اپنے اگلے بھائی ہیں محمد آصف علی بھائی. آصف علی بھائی، آپ درجہ عالیہ سال اول میں پڑھتے ہیں. کون سے جامعہ سے تعلق ہے آپ کا؟ جامعہ قادریہ رضویہ. جامعہ قادریہ رضویہ. ماشاءاللہ. سنی جامعہ کے کافی طلباء ہیں. آپ سب کو مرحبا کہتے ہیں. دعوت اسلامی آپ کی ہے، تشریف لاتے رہا کریں. سلسلہ تو ویسے ہی ہے. یہ بتائیے کہ آپ نے یہ جواب لکھا جوتا اتارتے وقت پہلے کس پاؤں کا جوتا اتارنا چاہیے؟ آپ نے بائیں لکھا. مسجد سے اگر کوئی بندہ باہر نکلے تو کون سا پیر باہر نکالنا چاہیے؟ تو مسجد دایاں پاؤں بائیں نکالنا چاہیے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ بندہ پہلے جوتے کے اوپر پاؤں رکھ لے، پھر پہلے دایاں پاؤں جوتا. اگر مسجد سے دایاں پاؤں باہر نکالے گا، بایاں نکالے گا. بایاں پہلے نکالیں گے تو وہ پھر جوتے کے اوپر رکھیں تو پھر پہلے دایاں پہنیں گے پھر بایاں پاؤں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. سوال کریں. کسی کے گھر میں جھانکنا کیسا؟
झांकना मना है, हुजूर अलैहिस्सलाम ने मना फरमाया। टेस्ट के लिए खून निकालने से क्या वजू टूट जाएगा? टेस्ट के लिए खून निकालने से वजू टूट जाएगा। रोज़े का हुक्म क्या होगा? अगर कोई खून देता है या खून निकालता है टेस्ट के लिए तो उसके रोज़े का हुक्म क्या होगा? इससे रोज़ा भी जाता रहेगा। अच्छा, हमेशा याद रखें, आपको भी और बाकी लोगों को भी काम आएगा ये फार्मूला। जिस्म से कोई चीज़ निकलती है ना तो उससे रोज़ा नहीं टूटता, चाहे खून निकले चाहे कै निकले। जिस्म में कोई चीज़ जाती है तो रोज़ा नॉर्मली उससे टूटता है। उसमें भी कुछ मुस्तस्नियात ज़रूर हैं, हवा भी जा रही होती है, बाज़ औक़ात गुबार चला जाता है, लेकिन 80-90% आपका मामला हल हो जाएगा। कंफ्यूज हो जाता है इंसान कि यार रोज़ा टूटा या वज़ू टूटा। खून निकलने से वज़ू तो टूटेगा, रोज़ा नहीं टूटेगा। जी एक और सवाल कर लें। अगर कोई किसी के पास माजरत लेकर आए तो उसे क्या करना चाहिए? माजरत माफ़ी मांगे किसी से तो माफ़ी उसे माफ़ कर देना चाहिए। अगर ना माफ़ करेगा तो इसके लिए वईद है। क्या वईद है? नमाज की शराइत कितनी है? 6 शराइत। कौन कौन सी? तहारत, सित्रे औरत, नीयत, वक्त, तकबीर तहरीमा, इस्तकबाल क़िबला। माशाल्लाह, आपकी राइटिंग भी बड़ी प्यारी है। आपने खुद ही लिखा है, लिखवाया किसी से? खुद ही लिखा है। अच्छा, खुद ही लिखा है। हज़रत हसन बिन साबित का आपने नाम लिखा है। हज़रत हसन बिन साबित की कोई एक खुसूसियत बताएं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मद्दाह थे, नात ख़्वानी किया करते। अच्छा, इनका कोई बड़ा मशहूर एक शेर है, वो सुनाएंगे? बअहसनु मिनका लम तरकत आइनी। शायद वो आप शब महराज कब मनाते हैं? 15 रजब मुझे। वो तो कूंडे बनाते हैं। 27 रजब को शब महराज होती है। ऐसा ना करो यार, इतनी मशहूर रातें भूल जाते हो आप लोग। चले, मोहम्मद फ़ुरकान वल मोहम्मद अशरफ, आप इस वक्त FSC किया आपने और आप माशाल्लाह जॉब वगैरह की तलाश में, अल्लाह आपको हलाल तैयब आसान रोज़गार अता करे। इसके अलावा दावत इस्लामी की भी कोई ज़िम्मेदारी है आपकी? नहीं। अच्छा, तो कैसे ज़हनी आजमाइश की तरफ आएगा? सिलसिला शौक़ से देखते हैं तो उधर से शौक़ पड़ा और इस्लाम भाई ने भी दावत दी तो फिर। अच्छा, तो तैयारी कैसी है आपकी जनाब? तैयारी तो ख़ास नहीं है, कुछ तैयारी ख़ास नहीं है, तो ऐसे ही मतलब मुलाकात करने आए थे, कर लेते हैं आपस में मुलाकात फिर इंशाल्लाह। कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरत का नाम बताएं। सूरह बकरा। कुरान पाक की दुल्हन किसे कहा जाता है? सूरह यासीन शरीफ। नहीं, जवाब दुरुस्त नहीं है। ये बताइए कि कुरान पाक की वो कौन सी सूरत है जिसको पढ़ें तो 10 कुरान पाक का सवाब मिलता है? सूरह यासीन। सूरह यासीन कुरान पाक के कौन से पारे में? सारे खामोश रहेंगे प्लीज़। अच्छा, वो सूरत बताएं। 21, 22 में और 23 में। कुरान पाक की वो कौन सी सूरत है जिसको 3 बार पढ़ें तो 1 कुरान का सवाब मिलता है? सूरह इखलास। माशाल्लाह। अच्छा, अब ये बताइए, दावत इस्लामी की मरकज़ी मजलिस शुरा के निगरान साहब का नाम क्या है? हाजी इमरान अत्तारी। प्यारे आका अलैहिस्सलाम के मुबारक चचा, 2 चचा ईमान वाले थे, उनका नाम बता। हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और शहबाज अली वल्द गुलाम रसूल। आप कौन से सीज़न में आए थे? सीज़न 9। सीज़न 9 में आए थे। कहाँ तक गए थे? क्वार्टर फाइनल से। अच्छा, क्वार्टर फाइनल में गए थे। अभी आप दरस निज़ामी कौन सा दर्जे में हैं? दर्जा राबिया। राबिया में है। जनाब, आप ये बताइए कि सैयदना बिलाल हबशी ये कहाँ से ताल्लुक़ रखते थे? किस मुल्क से ताल्लुक़? अपना मुल्क यमन। इनका नाम ही हबशी है तो हबशा से, ठीक है ना, अफ्रीका से ताल्लुक़। हबशा आज के दौर में हबशा किस मुल्क को कहते हैं? साउथ अफ्रीका, इथोपिया। ठीक है, ये आप सबकी मालूमात में इजाफा। इथोपिया जो है वो सैयदना बिलाल हबशी का, आज पहले जो हबशा था वो इथोपिया है। चलें जनाब, हज़रत सुहेब रूमी ये कहाँ से थे? हज़रत सुहेब रूमी ये किस मुल्क से थे? मुल्क रोम से, शहर रोम। सलमान फ़ारसी कहाँ से थे? फ़ारिस से। फ़ारस आज के दौर में किस मुल्क को कहते हैं? फ़ारस ईरान को। ईरान को कहते हैं, ठीक है। फ़ारस में बोली जाने वाली ज़बान फ़ारसी है। फ़ारसी, ठीक है। हज किस दिन होता है? हज दिन 10 ज़ुल्हिज्जतुल हराम। 10 ज़ुल्हिज्जा को होता है। अच्छा, फिर ईद उल फितर कब, ईद उल अज़हा कब होती है? ईद उल अज़हा 10 ज़ुल्हिज्जतुल हराम को होती है, जबकि 9 ज़ुल्हिज्जतुल हराम को होता है हज होता है। हज के दिन क्या करते हैं हाजी? मैदान अरफात में जमा होते हैं सर। जी फ़हीम भाई सवाल करें।
नमाज जनाजा की कितने रुकन हैं? 2 रुकन हैं, तकबीरात और क़याम। और इसमें सुन्नत मुअक्कदा कितनी? सुन्नत मुअक्कदा 3 हैं, दुआ पढ़ना, दुरूद पाक पढ़ना और सना पढ़ना। कलाम कौन सा पसंद है आपको? नया नया याद किया था, हम खाक हैं और खाक ही मावा है हमारा। इसमें आला हजरत ने मौला अली के लक़ब बू तुराब का उसने लक़ब खाक शहनशाह से पाया, जो हैदर कर्रार के मौला है हमारा। हम खाक उड़ाएंगे जो वो खाक ना पाई, हम खाक उड़ाएंगे जो वो खाक ना पाई, आबाद रज़ा जिस पे मदीना है हमारा। चलें जनाब, अगले भाई को माइक दें। मोहम्मद फ़हद सईद, मोहम्मद फ़ाज़ सईद वल सईद अहमद, MA इन उर्दू। जी, क्या बात है। और कौन से दर्जे के तालिब इल्म हैं? तदरीस सादसा। मेरा ख्याल है आप भी तशरीफ लाए थे। जी जी। यानी आजमाइश में थोड़ी बहुत याददाश्त है मेरी। चले, कौन से सीज़न में आए थे? सीज़न 9। सीज़न 9 में आए थे। सरदाराबाद की तरफ से थे? दारुस्सलाम तोबा। दारुस्सलाम तोबा की तरफ से थे। अच्छा, चले जनाब, सवाल करें भाई। ये बताइए, कर्ज की मजम्मत से मुतल्लिक कोई रवायत बयान कीजिए। कर्ज़ की मजम्मत के मुतालिक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान अलीशान का एक मफ़हूम मिलता है कि जो शख्स कर्ज़ देने की नियत करता है तो अल्लाह ताला उससे कर्ज़ अदा ही करवा लेता है, लेकिन जो शख्स कर्ज़ लेकर उसके देने की नियत नहीं करता तो अल्लाह ताला उस पर तबाह व बर्बादी डाल देता है। रजब के आखिर में चांद नज़र आया तो अगला महीना कौन सा होगा? शाबानुल मुअज़्ज़म। शाबान का आखिर में चांद नज़र आया, फिर कौन सा महीना होगा? जी, शाबान के आखिर में चांद नज़र आया, फिर अगला महीना कौन? माह रमज़ान मुबारक। 30 रमज़ान को चांद नज़र ना आया तो 31 रमज़ान को रोज़ा रखेंगे या ईद मनाएंगे? नहीं, ईद मनाएंगे। क्यों नहीं? चांद तो नहीं नजर आया, क्योंकि चांद की जो मुद्दत है या 29 या 30 ही है। अच्छा, 31 नहीं हो सकता। 31 नहीं हो सकता। जंग का शहर लिखा आपने, जंग में रिहाइश है आपकी? जी, जंग की रिहाइश है। शहर की कोई खास सौगात बताए खाने वाली कौन सी होती है? जो लेकर नहीं आए साहब, लेकर नहीं आए इसके तो कोई वैसे मशहूर मारूफ नहीं है जिस तरह मगर मालूम हो सके, कोई मशहूर नहीं है। बुजुर्गाने दीन जिनका मिजाज। जी, हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह तआला अलैह, जंग की, जंग के अंदर है कि जंग के साइड? यानी जंग के अतराफ में। सुल्तान बाहू के कलाम के 3 शेर सुना दे। मुर्शिद दा दीदार है बाहू, मैनू लख करोड़ा हज्जा हो, अलिफ अल्लाह चंबे दे बूटी मन विच मुर्शिद लाई हो, नफी इसबाक ना पानी मंगया हरे रंगी हलाई लो हाई हो। मोहम्मद अब्दुल रहमान वल मोहम्मद रमज़ान, खामसा में आप? जी। कहाँ पढ़ते हैं? जामिअतुल मदीना फैज़ान मदीना सरदाराबाद। हालात भी चल रहे हैं, इतने मुश्किल दिन हैं, फिर क्यों ज़हनी आजमाइश में आए? इससे तो एक इल्म दीन सीखने का बहुत मौका मिलता है और तो सीख लिया आपने सवाल की तैयारी में, फिर आगे सलाहियतें भी बढ़ती हैं। काफ़ी ज़्यादा बंदे को दूसरे शोबाजात में या दीगर मदनी कामों में इस तरह काफ़ी इल्म दीन सीखने का दीगर सलाहियतें। हज़रत उस्मान गनी का मज़ार जन्नतुल बकी में है, हज़रत उमर का मज़ार कहाँ है? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मज़ार मुबारक मक्का में है। मक्के में। अच्छा, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का कहाँ है? मदीने में है। हज़रत उमर फ़ारूक आज़म का भी और हज़रत सिद्दीक़ अकबर का भी। कहाँ पर? जन्नतुल बकी में। अच्छा, रोज़ा रसूल के साथ फिर किन के मज़ारात हैं? जी, सारे इस्लाम पे तशरीफ रखें। मोहम्मद ज़ुबैर अत्तारी वल मोहम्मद मुश्ताक अत्तारी, आप जामिअतुल मदीना कौन से दर्जे में? मुदर्रिस हैं। अच्छा, कौन से वो पढ़ाते हैं? राबिया खामसा। राबिया खामसा। आजकल तो आपकी मसरूफियात भी ज़्यादा हैं, अगर सेलेक्ट हो गए उस्ताद साहब तो कैसे आएंगे आप फिर बाबुल मदीना? छुट्टियाँ हो जाएंगी, इजारे में कटौती हो जाएगी? मेरा यहाँ आने का सिर्फ एक ही मकसद था कि आपसे मुलाकात। सुभान अल्लाह। ठीक, अल्लाह आपको खुश रखे, आपको सलामत रखे, अल्लाह आपके रत्बे को और बढ़ाए माशाल्लाह, माशाल्लाह, अल्लाह आपको सलामत दीजिए। मेरा ख्याल है फिर इम्तिहान ना दे, मकसद तो पूरा हो गया, क्योंकि अगर आप सेलेक्ट होकर चलेंगे बाबुल मदीना तो सुभान अल्लाह, तशरीफ रखें। चले, मैं यही देख रहा था उस्ताद साहब मुस्कुरा बहुत रहे हैं, खुशी बहुत हो रही है, तो माशाल्लाह। चले, आपका हुस्न ज़न है, अल्लाह आपके हुस्न ज़न से मुझे अच्छा बना दे। जनाब ज़ुबैर भाई, आप माशाल्लाह दर्जों को पढ़ाते भी हैं, उस्ताद साहब भी हैं, आपने माशाल्लाह सहाबा इकराम के नाम भी लिखे। ये बताइए कि क्या हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह अशरा मुबशरा में से है? जी। अच्छा, गसीलुल मलाइका किस सहाबी को कहा जाता है? हज़रत हंज़ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। सब कौन सा कलाम आपको पसंद है?
कलाम तो सारी पसंद हैं लेकिन ज़्यादा कसीदा मेराज। हाय हाय हाय, वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवागर हुए थे, नए निराले तो अरब के सामा अरब के मेहमान के लिए, बचा जो तलबों का उनके धो, बना वो जन्नत का रंग और रोगन जिन्होंने दूल्हा की पाई उतरन वो फूल गुलजार नूर के, वही तो जोबन टपक रहा है, वही तो अब तक छलक, वही तो अब तक छलक रहा है, वही तो जोबन टपक रहा है, नहाने में जो गिरा था पानी कटोरे तारों ने भर लिए थे, जो हम भी वहाँ होते खाके लिपट के कदमों से लेते उतरन मगर करे क्या नसीब में तो ये नामुरादी के दिन लिखे थे, रहमत शफी रज़ा पे लिल्लाह हो इनायत इसे भी उन खिलातों से हिस्सा जो खास रहमत के वहाँ बटे। क्या बात है, क्या बात है, मज़ा आ गया भाई, बड़े दिनों बाद कोई ऐसा मिला है। ज़मीनो ज़मा सुनाएंगे, ज़मीनो ज़मा कलाम याद है, और कौन सा कलाम याद है आपको? और क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी। वाह वाह, चलें जनाब। नफ्स ये क्या जुर्म है, ये क्या जुल्म है, जब देखो ताज़ा जुर्म है, ना तो वहाँ के सर पे इतना बोझ बारी, वाह वाह। और सुना इसके अशार। इस तरफ रोज़े का नूर, उस समत मिंबर की बहार, बीच में जन्नत की प्यारी प्यारी क्यारी, वाह वाह। नूर की खैरात लेने दौड़ते हैं महरुबा, उठती है किस शान से गर्दे सुवारी, वाह वाह। सदके इस इनाम के कुर्बान में इस इकराम के हो रही है दोनों आलम में तुम्हारी, वाह वाह। पारा ए दिल बीना निकला दिल से तोहफे में रज़ा, उन सगाने कू से इतनी जान प्यारी, वाह 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 वाह, माशाअल्लाह जी। अगले भाई का नाम उस्ताद साहब ये बताएं, अगर बिलफर्ज हम आपको सेलेक्ट करते हैं तो आप क्या जा सकेंगे बाबुल मदीना? एक हफ्ता आपको पहले जाना होगा, टीम सेलेक्ट हो गई तो फिर अगले मैं इंशाअल्लाह ज़ोजल आइंदा साल आऊँगा, इस साल नहीं, मैं सिर्फ एक मकसद के लिए आया था। बड़ी मेहरबानी। ये बता देता हूँ इनके दिलजोई की नीयत से कि ये माशाल्लाह इसके बाद वाला जो राउंड था उसके लिए हमने उन्हें सेलेक्ट कर लिया था, तो माशाल्लाह ये हमें उम्मीद थी कि शायद ये बाबुल मदीना तक पहुँच जाते, लेकिन उस्ताद साहब हैं हमारे माशाल्लाह, इनकी मेहरबानी तशरीफ़ लाए। मोहम्मद सुहेल रज़ा वल्द महबूब इलाही जामिअतुल मदीना के तालिब इल्म हैं और दर्जा सादिसा छठे दर्जे के माशाल्लाह। ये अबुल कासिम नबी पाक की मशहूर कुन्नियत है, प्यारे आका को कासिम नेमत भी कहा जाता है, ये किस हदीस की वजह से कहा जाता है? हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु युती, कि अल्लाह ताला अता फरमाता है और मैं अल्लाह की अता से तकसीम करता हूँ। यही हदीस का गोया शरह बयान किया आला हज़रत ने एक शेर में, वो शेर सुना दें। इन्ना आतैना कल कौसर, सारी कसरत पाते ये है, और वो बिल्कुल इस हदीस की जिसमें अल्फाज भी हैं उसके अंदर, रब है मोती ये है, कासिम रिज़्क़ है उसका खिलाते ये है, उसका है खिलाते ये है। माशाल्लाह। मुस्तफ़ा रज़ा खान साहब आला हज़रत के साहबजादे का नाम है, दूसरे साहबजादे का नाम बताएं। हामिद रज़ा खान। आला हज़रत के जो साहबजादे हैं, एक जो मुफ्ती आज़म हिंद कहलाते हैं, वो कौन थे? मुफ्ती आज़म हिंद मौलाना हामिद रज़ा खान। मुफ्ती आज़म हिंद मुस्तफ़ा रज़ा खान नूरी रहमत। इनका तखल्लुस क्या था? नूरी। कोई मक्ता सुना। रियाजत के यही दिन हैं, बुढ़ापे में कहाँ हिम्मत, जो कुछ करना है अब कर लो, अभी नूरी जवां तुम हो। इसीलिए आप ज़हनी आजमाइश में आ गए। अच्छा, कासिम बिलाल अत्तारी वल्द शौकत अली, आप सरदाराबाद से हैं, जामिअतुल मदीना कौन से दर्जे में? खामिसा 5वें दर्जे में है। ठीक है, आपने लिखा हज़रत उस्मान गनी का मज़ार मुबारक जन्नतुल बकी में है, ये बताइए बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का मज़ार कहाँ है? जन्नतुल बकी में। हज़रत खदीजा का मज़ार कहाँ है? ये मकाम अब्वा में बीबी आमना का मज़ार है। बीबी खदीजा जो हमारी अम्मी हुजूर हैं, नबी पाक की पहली ज़ौजा मोहतरमा, उनका मज़ार जन्नतुल माला में है। जन्नतुल माला कहाँ है? मक्का में। जन्नतुल बकी कहाँ है? मदीना में। अच्छा, ये बताएंगे कि नबी पाक की जब पहली शादी हुई, पहला निकाह हुआ, तो बीबी खदीजा की उम्र कितनी थी? 40 इयर्स। प्यारे आका अलैहिस्सलाम 25 ईयर्स 25 साल। नबी पाक पर पहली वही नाजिल हुई, उस वक्त प्यारे आका की उम्र मुबारक 40 साल। और कहाँ वही पहली नाजिल? गारे हिरा में। कौन सी आयत थी कुरान की? इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। वुज़ू में शक आ जाए तो क्या हुक्म है वुज़ू का? वुज़ू में शक आ जाए तो शक आने की वजह से वुज़ू नहीं टूटेगा, जब तक इतना यकीन ना हो कि कसम खा के बंदा कह सके मेरा वुज़ू टूट गया है, तो उस वक्त वुज़ू टूटेगा। शक की वजह से वुज़ू नहीं टूटेगा। वसवसे की सूरत में एहतियातन वुज़ू करना कैसा? शैतान की पैरवी करना है गोया के। जरा आप ये बताइए कि पाकिस्तान किस बराज़म में वाक़ है? बराज़म एशिया। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? कराची, आबादी के लिहाज से। और पाकिस्तान का कैपिटल कौन सा है? इस्लामाबाद। पंजाब का कैपिटल कौन सा है? लाहौर। बलूचिस्तान का? सिब्बी। सिब्बी क्यों कहा आपने? वही ज़हन में आए थे।
अच्छा, KP के कैपिटल कौन सा? पेशावर। ये ट्रेन जो होती है सरदाराबाद से कराची जाने में कितने घंटे लेती है? अप्रॉक्सीमेटली 17 टू। ये बताएं कि आप जो है कौन सा कलाम पसंद है आप? मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम। क्या बात, पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नज़ाकत पे लाखों सलाम, दहन जिसकी हर बात वही खुदा, वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम, लैलतुल कद्र से मतलइल फज्र हक, उस्मान की इस्तिकामत पे लाखों सलाम। अब ये बताइए ये कलाम किस तरह लिखा गया, किस अंदाज से लिखा गया, पता आपको वाकया? गुलाम मुर्तज़ा भाई, गुलाम मुर्तज़ा भाई क्या करते हैं आप? मैं BS इस्लामिक स्टडी कर रहा हूँ। BS इस्लामिक स्टडीज़ कर रहे हैं, कहाँ से कर रहे हैं? GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से। अच्छा, तो कैसे आ गए ज़हनी आजमाइश में? इंशाल्लाह अगर सिलेक्शन हो गई तो जाना मुश्किल नहीं है। कराची जाएंगे इंशाल्लाह। नहीं, लेकिन आने की वजह क्या बनी यहाँ ज़हनी आज़माइश में आने की वजह? जी जी, बहुत वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह मतलब कि शुरू से ज़हनी आज़माइश सीज़न 3 से जब हुआ था उस वक्त मैं हिफ्ज़ कर रहा था ज़ैनब मस्जिद फैसलाबाद में, तो वहाँ से हमारे स्टूडेंट भी गए थे, उस वक्त भी शौक़ बढ़ा। फिर उसके बाद जब वहाँ से फ़ारिग हुआ तो मदनी चैनल मोबाइल के ज़रिए या वैसे जहाँ भी मौका मिलता सुनने का तो सुनते रहे। फिर ये है कि चाहत बढ़ गई, इसीलिए फिर मैंने इस्लामियात में एडमिशन ले लिया। तो ज़हनी आज़माइश की वजह से इस्लामियात में एडमिशन लिया आपने? जी। अच्छा, इस्लाम का शौक़ बढ़ता गया ज़हनी आज़माइश में, और दावत इस्लामी का जो मदनी माहौल है और मदनी चैनल ये बाहर हैं, ये यहाँ से मतलब कि दिन की तरफ बहुत ज़्यादा रग़बत हो गई। इसी वजह से अब यही कोशिश होती है कि जब भी मौका मिल जाए दीन सीखने का, जहाँ से भी मिल जाए। क्या कर रहे हैं वहाँ पर ये कॉलेज में? ये मैं BS इस्लामिक स्टडी कर रहा हूँ। BS इस्लामिक स्टडीज़ में कर रहे हैं। अच्छा, तो आप कैसी तैयारी करके आए हैं? तैयारी तो अल्हम्दुलिल्लाह अपनी तरफ से तो ठीक ही है। अच्छा, सेलेक्ट हो गए तो कराची भी आएंगे? इंशाल्लाह ज़रूर है। अच्छा, नमाज के फ़राइज़ कितने हैं? नमाज के 7 फ़राइज़ हैं। शराइत कितनी हैं? 6। गुस्ल के फ़राइज़ कितने हैं? गुस्ल के फ़राइज़ 3 हैं। वज़ू के फ़राइज़ कितने हैं? 4। अच्छा, कौन सा कलाम आपको बहुत पसंद है? वैसे तो सारे कलाम पसंद हैं, लेकिन जो आला हज़रत ने मदीना शरीफ में जाकर जिसमें आपको आका अलैहिस्सलाम का दीदार हुआ, वो सुहेल आलादार फिरते हैं। अच्छा, उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं, गाफिल वो क्या जगह है जहाँ 4 जाते 5 जाते हैं 4 फिरते हैं, 5 जाते हैं, बाएं रस्ते न जा मुसाफिर सुन। ये शेर में गुलाम मुर्तज़ा भाई बहुत अच्छा लगा आप आए, और आपकी आमद जो है हमारे लिए बड़ी यूँ समझिए कि हौसले का बाइस बनती है। मदनी चैनल के नाज़रीन, ये है इल्म दीन का शौक़, ये है दावत इस्लामी। माशाल्लाह ये ज़हनी आज़माइश सीज़न 3 से सुन रहे हैं, देख नहीं रहे, और इसकी वजह से इन्होंने इस्लामिक यूँ समझिए कि BS इस्लामिक स्टडीज़ शुरू कर दिया। इतनी हिम्मत की यहाँ तक आए, हम आपको बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। आपने आके यूँ समझिए हमारा हौसला बढ़ाया है। अल्लाह आपको दुनिया और आखिरत की बरकत अता फरमाए। सारे इस्लाम पे तशरीफ़ रखेंगे। मोहम्मद फ़ुज़ैल रज़ा अत्तारी आप हैं, मोहम्मद मुश्ताक अत्तारी आप हैं, हमज़ा सरवर आप हैं, और साबिर फ़ारूक। मोहम्मद फ़ुज़ैल रज़ा भाई माशाल्लाह, आप जामिअतुल मदीना कौन से दर्जे में? दर्जा सादिसा। सादिसा, 6ठे दर्जे में हैं माशाल्लाह। बताइए, अगर आपके पास हदीस शरीफ, फ़िक़्ह, कुरान पाक, तफसीर और दीगर इस्लामी किताबें हों तो उनको रखने की तरतीब किस तरह होनी चाहिए? सबसे ऊपर कुरान पाक, उसके नीचे हदीस, उसके नीचे फ़िक़्ह, फिर सीरत। ख्वाजा गरीब नवाज़ का मज़ार कहाँ है? ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि तआला अलैह का मज़ार अजमेर शरीफ हिंद में है। अच्छा, राजस्थान। बाबा फ़रीद का मज़ार कहाँ है? बाबा फ़रीद का मज़ार पाकपतन शरीफ। अच्छा, बाहुद्दीन ज़करिया का मज़ार कहाँ है? मुल्तान शरीफ। अब्दुल्ला शाह गाजी का मज़ार कहाँ है? रहमत बाबुल मदीना कराची, क्लिफ्टन। हक पर होने के बावजूद झगड़े को तर्क कर देने की क्या फजीलत है? उसके लिए जन्नत के दरमियानी महल उसको दिया जाएगा। सुरमा किस वक्त लगाना सुन्नत है? रात सोते वक्त। अच्छा, आपको कौन से अशार पसंद है भाई? अमीर अहले सुन्नत का कलाम, बुला लो फिर मुझे ऐ शाह बर, बहरो बर मदीने में। मोहम्मद मुश्ताक अत्तारी वल जमील सुल्तान। चौक मुंडा, ये क्या चीज़ है भाई? ये कोई इलाका है? ये शहर है। क्या नाम है? चौक सरवर शहीद है और चौक मुंडा भी इसका नाम। चौक मुंडा भी कहते हैं। अच्छा, कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से तकरीबन 300-350 किलोमीटर। वहाँ से आप यहाँ पढ़ने आए? जी। अच्छा, कौन से दर्जे में पढ़ते हैं? दर्जा ओला। इतने घबराए हुए क्यों बेटा? इजी हो जाए, आराम से बड़ी आवाज़ निकालें, टेंशन ना लें, ठीक है? दर्जे ऊला में है। आज एक इम्तिहान वैसे भी सुबह सुबह भी दिया है ना, दूसरा कल और देना है, और अब्दुल हबीब भाई भी आ गए इम्तिहान लेने के लिए। ठीक है जनाब, चलें सवाल करें फ़हीम भाई। जब किसी मुश्किल में मदद की ज़रूरत हो तो किस तरह पुकारना चाहिए? जा क्या कर पुकारना चाहिए? जी,
जहाँ किसी की मदद की ज़रूरत हो किस तरह पुकारना चाहिए? बंदा अकेला हो जब, ये कहना चाह रहे हैं? अच्छा अच्छा, सबसे बुरा चोर हदीस में किसको कहा गया? हमजा सरवर वल्द गुलाम सरवर, आप कौन से दर्जे के तालिब इल्म हैं? मैं जामिया कादरिया रिजवा में तालिब इल्म हूँ, 5वें साल खामिसा में। 5वां साल में है, माशाल्लाह जनाब। अच्छा, सवाल करें फ़हीम भाई। दुश्मन के खौफ के वक्त कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए? नहीं। अच्छा, ये बताइए कि जब बंदा सफ़र पर रवाना होता है तो उसकी कुछ सुन्नतें बताइए। सफ़र पर रवाना होने के लिए ये सुन्नत है कि उस सफ़र के लिए वो वक्त इख्तियार किया जाए कि जिसमें नमाज़ों का वक्त ना आए, खुसूसन जो फ़जर के बाद या इशा के बाद। और इसके लिए बेहतर क्या है, रात में सफ़र करे या दिन में सफ़र? बेहतर रात में, क्योंकि फरमाया क्या कहा जाता है कि रात में जो है ना ज़मीन को सुकेड़ दिया जाता है ताकि सफ़र जो है ना वो कम। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी हड्डियों पर सजदा करने का हुक्म हुआ? 7 हड्डियों पर सजदा करने का हुक्म। तादील अरकान क्या होता है? तादील अरकान से मुराद आहिस्ता आहिस्ता नमाज को अदा करना, उनके पूरे तरीके के मुताबिक, यानी हर अरकान को पूरे तरीके से अदा करना। माना है इसका स्टैंडर्ड है? आहिस्ता से क्या मुराद होगा? आहिस्ता से मतलब 3 सुबहान अल्लाह की मिकदार के बराबर जो है ना वो एक रुकन अदा किया। साबिर फ़ारूक वल्द उमर फ़ारूक जी, आप जिस कैफियत में आए हैं, जिस अंदाज से आप आए हैं, हमने आपको आते हुए भी देखा, ज़ाहिर इसमें तकलीफ़ भी होती। क्या आप दरस निज़ामी कर रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कौन से दर्जे में? दर्जा राबिया में। खामिसा में या राबिया में? आप हाफिज़ कुरान भी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपको ये प्रॉब्लम कब से है? तकरीबन मैं 4 या 5 साल का था, टाइफाइड बुखार हो गया था, उसकी वजह से मजदूरी। तो अब आपने जो हिफ्ज़ भी किया वो भी इसी हालत में किया? जी वो भी इसी हालत में किया। अच्छा, उसके बाद दरस निज़ामी शुरू किया? जी वो भी इसी हालत में किया। अच्छा, तो अब आप ज़हनी आजमाइश में क्यों आए? मदीने जाने के लिए। किसी ने अगर नमाज में इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहा तो उसकी नमाज हो जाएगी? अगर किसी ने अल्हम्दुलिल्लाह के बाद जहाँ पे सूरत पड़ी जाती है वहाँ पर आकर रहा तो उसकी नमाज हो जाएगी। नमाज हो जाएगी उसकी नमाज। आला हज़रत के कुछ अशार याद हो आप? कौन सा कलाम पसंद है? सबसे औला हमारा। अच्छा, इसका मक्ता सुना है? जी मक्ता सुना है। गमज़दों को रज़ा मुजदा दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, खल्क से औलिया, औलिया रसूल, सब्ज़ रसूलों से आला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। जिसके तलवों का धोवन है आबे हयात, उस जाने मसीहा पे लाखों से है वो जाने मसीहा हमारा नबी। जिसकी 2 बूंद है कौसरो सलसबील। जनाब, आपकी तशरीफ़ आवरी हमारे लिए बड़ी हौसले का बाइस रही। तमाम इस्लाम में तशरीफ़ रखेंगे। मोहम्मद फैज़ान असगर वल्द मोहम्मद असगर, आप MMBS से क्या मुराद है? MBBS है ये? बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। अच्छा, यानी MBBS नहीं है, आप MMBS हैं? MBBS हैं। अच्छा, फिर आपने लिखा MMBS है, लिखने में गलती हो गई। ठीक है, तो डॉक्टर बन रहे हैं? जी सर। अच्छा, किस फील्ड में डॉक्टर बनेंगे? अभी तो जनरल 5 साल का होता है ना MBBS, इसके बाद फिर स्पेशलाइजेशन। MBBS करते हुए ज़हनी आजमाइश कैसे बीच में आ गया? मैं अभी फ्री था पेपरों के बाद, 3rd ईयर मेरा स्टार्ट, क्लासेस तो अभी स्टार्ट हो गई हैं लेकिन अभी रिज़ल्ट नहीं आया, तो मैं मदनी चैनल देखता था तो ऑडिशन का जी। पहले देखा है कभी ज़हनी आजमाइश? जी, ज़हनी आजमाइश भी देखा है और मैं इज्तिमा में भी आता हूँ माशाल्लाह, इस वजह से। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि आप इंशाल्लाह इलाज करेंगे और अल्लाह आपके हाथ में शिफा भी अता फरमाए। वो कौन से नबी हैं जिनको मादरजाद अंधों को आंखें देने वाला मौजज़ा अता किया गया? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। वो कौन से नबी हैं जिनको कोड़ी ज़दा लोगों को शिफा देने वाला जो है वो? कोड़ी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, ठीक है। और ये बताएंगे आपके वो कौन सी नमाज है जिसमें सजदा नहीं है? नमाज जनाजा। नमाज जनाजा। जनाब सवाल कीजिए। नमाज के वाजिबात कितने हैं? नमाज के वाजिबात 40 आई थिंक 30 आई थिंक सो 30 है। ठीक है, कुछ 5 बयान करें। वाजिबात में क़याम तो फ़र्ज़ है, इसमें किरात वाजिब है और
किरात तो फ़र्ज़ है नमाज में। अच्छा, आपको कौन सा कलाम बड़ा पसंद है? हर वक्त तसव्वुर में मदीने की गली हो, और याद मदीने की, हर वक्त तसव्वुर में मदीने की गली हो, और याद मोहम्मद की मेरे दिल में बसी हो। अच्छा, इसका मक्ता सुना दे इस कलाम का। मक्ता आखिरी शेर अगर आप स्टार्ट कर दें तो। अत्तार हमारा है, अत्तार हमारा है, सरे हश्र इसे काश। नहीं डॉक्टर साहब, थोड़ी तैयारी आपको ज़रूर। हम देखिए, हम चाहते हैं कि हमारे इस सिलसिले में खूबसूरती पैदा हो, दुनियावी स्टडीज़ करने वाले, चाहे वो डॉक्टर्स हों, इंजीनियर्स हों, वो आएँ और आगे बढ़ें। हम उनको कुछ थोड़ा सा ज़रूर एज भी देते हैं ताकि वो किसी तरह आएँ। हम आपको वेलकम करते हैं, आप आए माशाल्लाह हमारे सिलसिले में। उस्मान शरीफ अत्तारी वल्द मोहम्मद शरीफ। लब्बैक। माशाल्लाह। आप कौन से दर्जे के तालिब इल्म? दर्जा खामसा। दर्जा खामिसा के तालिब इल्म। यहीं आलमी ये फैज़ान मदीना में पढ़ते हैं? मरकज़ी। अच्छा, नाखून काटने की सुन्नतें बताइए। नाखून काटने की सुन्नतें किस तरह काटेंगे हाथ के नाखून? हाथ के नाखून सबसे पहले शहादत की उंगली, इसे तरतीब बार चुंगलियाँ और अंगूठा छोड़ देंगे। इसके बाएं हाथ की चुंगलियाँ से शुरू करेंगे, अंगूठा बीच में। कितने दिन तक नाखून ना काटें तो बेबरकती हो जाती है? 40 दिन। उस्मान शरीफ भाई, कलाम कौन सा पसंद है आपको? वो कमाल हुस्न हुजूर हैं कि गुमाने नक्स जहाँ नहीं, यही फूल खार से दूर है कि यही शम्मा है। यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। इसका मतलब क्या है? यानी कि हर फूल के साथ कांटे होते हैं, लेकिन आका अलैहिस्सलाम ऐसे फूल हैं कि जिनके साथ कोई कांटे का शुमार नहीं, और हर शम्मा के साथ धुआं होता है, लेकिन आका अलैहिस्सलाम ऐसी शम्मा है कि इनके साथ धुआं नहीं। ठीक है। अहमद रज़ा वल्द मोहम्मद गफ्फार, आप जामिअतुल मदीना जामिया रज़विया के तालिब इल्म, कौन से दर्जे में होते हैं? आलमिया साल अव्वल, दर्जा साबिया। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। आप अगर सेलेक्ट हो गए तो आपको आपके जामिया से छुट्टी मिलेगी? जी। अच्छा, हज़रत अमीर हमज़ा, आपने सहाबा किराम की फहरिस्त में नाम लिखा है, इनका एक लक़ब बड़ा मशहूर है, वो क्या है? अली नवाज़ वल सरफराज कौन है? तो दीजिएगा। अच्छा, माशाल्लाह। आप कौन से क्या करते हैं? दर्स निज़ामी कहाँ कर रहे हैं? जी, मरकज़ी जामा ज़मीन सरदाराबाद। कौन से दर्जे? दर्जा सानिया। सानिया में है, माशाल्लाह। अच्छा, ये बताइए कि आपने सहाबा किराम के जो माशाल्लाह नाम लिखे हैं, मौला अली का नाम भी लिखा है, हज़रत अबू कतादा का नाम भी लिखा है। हज़रत अबू कतादा का एक बड़ा खूबसूरत वाक़या याद है आपको? इनके साथ एक वाक़या हुआ था जंग ओहद में। अच्छा, ये चांद दो टुकड़े वाली बात करते हैं। चलो, इसके ऊपर आला हज़रत का शेर सुना दें। इशारे से चांद को तोड़ दिया, गेही रूह को। बोलेंगे नहीं आप प्लीज? अली नवाज़ भाई, आपके साथ जो भाई हैं जुनेद अली, उनको माइक दीजिएगा। जुनेद अली वल्द गुलाम मोहम्मद। जनाब, आप दरस निज़ामी कौन से दर्जे में? दर्जा सादिसा। सादिसा में। कहाँ पढ़ रहे हैं? जामिअतुल मदीना फैज़ान मदीना सरदाराबाद। आपका जनाब हसन और हुसैन, सुभान अल्लाह, आपने हसनैन करीमैन की बात की है। इनको नबी पाक क्या कहा करते थे दोनों? हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दोनों जन्नत के नौजवानों के भी सरदार हैं और दुनिया के अंदर मेरे फूल हैं। माशाअल्लाह। दुनिया में फूल हैं, इस बात को आला हज़रत ने अपने शेर में बयान किया है। उन दो का सदका जिनको कहा मेरे फूल हैं, कीजिए रज़ा को हश्र में खंदा मिसाल गुल। अच्छा, हसनैन करीबैन की आपने बात की है, दोनों में बड़ा कौन है उम्र में? हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अच्छा, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत कहाँ हुई? मैदान करबला में। और आपका मज़ार कहाँ है? आपका मज़ार कूफा में। करबला में ही है? करबला, वहीं पर है आपका मज़ार। अच्छा जनाब, सवाल कीजिए जनाब। औकात मकरूहा कितने और कौन कौन से? औकात मकरूहा? औकात मकरूहा 3 हैं। तहज्जुद का वक्त कब शुरू होता है? तहज्जुद का वक़्त रात को इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद, जब बंदा सो जाए, उसके बाद जब आँख खुले तो वो तहज्जुद पढ़ सकता है। अच्छा, कोई 11-12 बजे कोई लिमिट है? कितने घंटे के बाद तहज्जुद का वक्त शुरू होता है? या बंदा 7:30 बजे इशा है, 7 बजे मैं इशा पढ़ूँ, 7:15 बजे सो जाऊँ, 7:30 बजे उठ जाऊँ, तो क्या तहज्जुद पढ़ सकता हूँ? 7:30 बजे ही तहज्जुद पढ़ लूँ? वो आधी रात से लेकर। अच्छा, नहीं, मैं 7:30 भी तहज्जुद पढ़ सकता हूँ। पहला आपका जवाब ठीक था कि बंदा इशा पढ़ के थोड़ी देर सो जाए, चाहे 7 बजे इशा क्यों ना हो, 7:30 भी तहज्जुद पढ़ सकता है। ठीक है, आपको कौन सा कलाम पसंद है?
हबीबे खुदा का नज़ारा करूँ मैं, दिलो जान उन पर निसारा करूँ। जान क्या है अगर हों करोड़ों, ये एक जान क्या है अगर हों करोड़ों, तेरे ही नाम पर सबको वारा करूँ मैं। माशाल्लाह, तशरीफ रखें सारे इस्लाम में तशरीफ। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ आपने सहाबी का नाम लिखा है, इनके बारे में बताएं। एक बड़ी स्पेशल चीज़ है इनके बारे में, बाकी सहाबा से एक वस्फ इनका ऐसा है जो हटके है, तो क्या क्या ऐसा वस्फ है? ये आश्रम मुबशरा से हैं और ये मालदार तरीन सहाबा में इनका शुमार होता है। जैसे हज़रत उस्मान गनी थे ना, ऐसे हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ भी बड़े रिच, बड़े मालदार सहाबी थे। अच्छा, जो दौलत के बाइस नमाज को तर्क कर दे उसका अशर किसके साथ होगा? उसका असर जो है वो शयातीन के साथ। आपका जवाब ठीक नहीं है। बताइए, कोई रुकू में सुबहान रब्बियल अज़ीम सही ना पढ़ सके, अज़ीम सही अदा ना कर सके, तो उसे क्या पढ़ना चाहिए? जी वो सिर्फ सुबहान अल्लाह भी कह देगा तो सुबहान रब्बियल करीम पढ़ ले वो। अच्छा, आपको कलाम कौन से याद है? नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया। पूरा करेंगे शेर। ले खबर जल्द के गैरों की तरफ ध्यान गया, मेरे मौला मेरे आका गया, मैं तुझ पे कुर्बान गया। जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीने पहुँचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान। आप अगले भाई को माइक दीजिएगा। मोहम्मद अब्दुल्ला वल्द मोहम्मद असलम, आप तालिब इल्म हैं जामियतुल मदीना के दूसरे दर्जे के, खामिसा के। अच्छा, खामिसा आसरी। जनाब माशाल्लाह, आपने बड़े प्यारे प्यारे सहाबा के नाम लिखे हैं। आप बताइए कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आशिक अकबर किस सहाबी को कहा जाता है? हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का दौरे खिलाफत कितने साल रहा? इनका मज़ार कहाँ है? इनका मज़ार मदीनतुल मुनव्वरा नबी पाक अलैहिस्सलाम के रोज़े के अंदर है। अच्छा, और कौन है प्यारे आका के साथ? हज़रत सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। इन दोनों को मिलाकर क्या कहा जाता है? शेखैन करीमैन कहा जाता है। अच्छा, माशाल्लाह। जलसा किसे कहते हैं? दोनों सजदों के दरमियान सीधा बैठना इस जलसा कहा जाता है नमाज के अंदर। सजदे साहब का तरीका बताइए। सजदा साहब का तरीका ये है कि आखिरी रकत के सजदे अदा करने के बाद बंदा अत्तहियात पढ़े। मुस्तहब ये है कि दुरूद पाक भी पढ़ ले और उसके बाद जो है एक तरफ दाएं तरफ सलाम फेरे, उसके बाद जो है 2 सजदे अदा करे, फिर उसके बाद अत्तहियात पढ़े मुकम्मल, जो रब्बी जान मुकम्मल पढ़ के कितनी शराइत सलाम फेर दे। इमाम के लिए 6 शराइत हैं। आकिल होना, बालिग होना, मर्द होना, मुसलमान होना और उसके अलावा माजूर ना हो, 5 और क़िराअत दुरुस्त हो। बेटा अब ये बताइए, ऐसा कि तुम किस मुल्क में है? मुल्क का क्या नाम है? हमारे मुल्क का क्या नाम है? पाकिस्तान। मुल्क का कौमी फल पता कौन सा आपको? कौमी फूल? कौमी फूल चंबेली है। मेरी आने वाली नस्लें तेरे इश्क ही में मचलें, उन्हें नेक तुम बनाना मदनी मदीने गागा जितने करो दूर उनसे फितने। मोहम्मद काशिफ वल्द लियाकत अली। अच्छा, आप जामियतुल मदीना कौन से दर्जे में? दर्जा सालिसा। दर्जा सालिसा, तीसरे दर्जे में है। ये जुमरा, ये किसी इलाके का नाम है? जी, ये फैसलाबाद की तहसील है। अच्छा, जुमरा में रहते हैं और आप माशाल्लाह यहाँ पढ़ते हैं और माशाल्लाह आपने बड़े प्यारे प्यारे सहाबा इकराम। हज़रत अनस बिन मालिक का आपने नाम लिखा, कोई वाक़या सुनाएंगे? प्यारे आका का एक बड़ा प्यारा मौजज़ा इनके घर हुआ था। जी, वो हज़रत सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का नाम इसलिए लिखा कि रियाज़ुस सालिहीन हम पढ़ते हैं दर्जा सालिसा में, इनकी बकसरत हदीस जो हैं वहाँ वारिद हुई हैं, इसलिए अनस रज़ियल्लाहु तआला ले गए थे, इनके दस्तरखान से हाथ पहुँचा था, फिर क्या हुआ? जी, तो वो जिस दस्तरखान से हाथ पहुँचा था वो उसको यानी कि आग नहीं जला सकती। आला हज़रत का एक शेर बड़ा प्यारा है इस मौके पर, 5 उंगलियों से जो फव्वारे जारी हुए हैं। जी, उंगलियां हैं, उंगलियां पंजाब रहमत की हैं जारी, उंगलियां हैं फैज़ पर टूटे हैं प्यासे झूम, नदियां पंजाब रहमत की हैं जारी, वाह वाह। जिनका नाम लिया जाए वो इस्लामी भाई यहाँ आकर तशरीफ रखेंगे। अजीम अनवर वल्द मोहम्मद अनवर, जोर से सब क्या कहेंगे? अब्दुर्रहमान रब्बानी वल्द गुलाम रब्बानी, मोहम्मद एहसान वल्द मोहम्मद अफजल, मोहम्मद उस्मान रज़ा वल्द मोहम्मद बूटा, मोहम्मद इमरान वल्द सुल्तान अहमद, मोहम्मद अय्यूब सियालवी वल्द मोहम्मद याकूब,
मोहम्मद साइल रज़ा अत्तारी वल्द माजिद अहमद, अदनान अली अत्तारी वल्द मोहम्मद सलीम, मोहम्मद मून अहमद वल्द मोहम्मद अलीम, जाहिद यासीन अत्तारी वल्द गुलाम यासीन, असद अली अत्तारी वल्द खालिद महमूद, मोहम्मद फैज़ान असगर वल्द मोहम्मद असगर, मोहम्मद कलीम अत्तारी वल्द मोहम्मद अख्तर, राना अब्दुल रहमान जलाली वल्द राना मोहम्मद अरशद जावेद, मोहम्मद अब्दुल्ला वल्द मोहम्मद असलम, मोहम्मद शुएब वल्द गुलजार अहमद, जुनेद अली वल्द गुलाम मोहम्मद, अली नवाज वल्द सरफराज, अहमद रज़ा वल्द मोहम्मद गफ्फार अब्दुल गफ्फार, उस्मान शरीफ अत्तारी वल्द मोहम्मद शरीफ, साबिर फ़ारूक वल्द उमर फ़ारूक, हमज़ा सरवर वल्द ग़ुलाम सरवर, मोहम्मद मुश्ताक अत्तारी वल्द जमील सुल्तान, मोहम्मद फ़ुज़ैल रज़ा अत्तारी वल्द कारी महबूब इलाही, सैफ अली वल्द शफ़क़त अली, मोहम्मद आतिफ़ वल्द मोहम्मद बशीर, मोहम्मद काशिफ वल्द लियाकत अली, शहबाज अली वल्द ग़ुलाम रसूल, मोहम्मद फ़हद सईद वल्द सईद अहमद, मोहम्मद अब्दुल रहमान वल्द मोहम्मद रमज़ान, मोहम्मद ज़ुबैर अत्तारी वल्द मोहम्मद मुश्ताक अहमद, मोहम्मद सुहेल रज़ा वल्द महबूब इलाही, कासिम बिलाल अत्तारी वल्द शौकत अली, मोहम्मद इरफान वल्द मोहम्मद रमज़ान, शहरियार शफ़ीक वल्द मोहम्मद शफ़ीक, ज़ुल्करनैन हैदर वल्द मोहम्मद जुम्मा ख़ान, मोहम्मद कासिम अत्तारी वल्द महबूबुर रहमान, मोहम्मद फ़ुरकान वल्द मोहम्मद अशरफ, मुगीरा ज़करिया अत्तारी वल्द मोहम्मद रफ़ीक, मोहम्मद आसिफ अली वल्द मोहम्मद आरिफ, मोहम्मद उस्मान वल्द अली रज़ा, इब्राहिम अंजुम वल्द सईद अहमद, और आखिरी नाम है मोहम्मद अहमद वल्द सुहेल ज़फ़र। ये वो इस्लामी भाई हैं जिन्होंने 50 में से पूरे 50 नंबर हासिल किए हैं। बाकी इस्लामी भाइयों की आमद का भी बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। अल्लाह ताला आप सबको जज़ाए खैर दे और हम सबको आलिम बाअमल बनना नसीब फरमाए। दावत इस्लामी आपकी है, किसी एक सिलसिले में आगे ना बढ़ सके तो दिल छोटा मत कीजिएगा। इज्तिमात में शिरकत, दावत इस्लामी के मदनी काफ़िलों में सफ़र करते रहिए। इंशाअल्लाह अब अगला राउंड नमाज असर के बाद इनके साथ होगा। आप अगर आना चाहें तो वापस आ सकते हैं और जाना चाहें तो आपको जाने की भी इजाज़त है। नमाज असर की तमाम इस्लामी भाई तैयारी करें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो सेलेक्ट हो रहे हैं इस्लामी भाई 4, मोहम्मद उस्मान रज़ा वल्द मोहम्मद बूटा, जामियतुल मदीना से ताल्लुक़ है, और दूसरे कासिम बिलाल अत्तारी वल्द शौकत अली। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एक हमने जो शोबा तालीम से ताल्लुक़ रखने वाले और स्टडीज़ से उनका ताल्लुक़ है, मोहम्मद मून अहमद वल्द मोहम्मद अलीम, माशाअल्लाह ये भी सेलेक्ट हो रहे हैं। और एक हमने सुन्नी जामियात, माशाल्लाह कई जामियात के तलबा आए तो उनकी टीम में से भी हमने एक इस्लामी भाई लिया है, जामिया कादरिया रज़विया के तालिब इल्म हमज़ा सरवर वल्द ग़ुलाम सरवर। तो ये हमारी सरदाराबाद की टीम है। अब आगे आ जाए माशाल्लाह। आप कराची आएंगे इंशाअल्लाह। और वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। खैरियत से हैं आप? ठीक है माशाल्लाह। तो हमारे जो माशाल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, माशाल्लाह मरहबा, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जो मोहम्मद उस्मान रज़ा हैं, आप बेटा टीम कैप्टन होंगे, आप अपनी पूरी टीम को लेके चलेंगे, आपस में तैयारी करवाएंगे। आगे आ जाएं, सारे इस्लाम आगे आ जाएं, साथ आ जाएं। और आप बेटा इधर आ जाएं, मून भाई आप इधर आ जाएं। ये 3 रुकनी टीम होगी, एक सुन्नी जामिया के तालिब इल्म, एक दुनियावी तौर पे तालीम को देखने वाले, और जो हमारे अगले इस्लामी भाई हैं जामियतुल मदीना के, वो इंशाअल्लाह इस टीम के मुआविन होंगे 4th पर्सन के तौर पर। और जब आप बेहतर लगेगा आप इसमें स्वैप कर सकते हैं। तो इंशाअल्लाह इस तरह ये टीम सेलेक्ट हुई है। कासिम बिलाल अत्तारी ये इंशाअल्लाह आपकी टीम के मुआविन के तौर पर होंगे। अल्लाह ताला हम सबको बरकत अता फरमाए। जल्दी जल्दी सारे इस्लाम भाई मस्जिद की तरफ चलेंगे। बहुत बहुत मुबारक हो आपको माशाअल्लाह।